+1 class. Today we are going to start the topic pressure. Pressure topic पढ़न तो पहला solid, liquid and gas 3 states of matter है ये. इन्हां विच तुहानूं पता ही है कि solid जिहड़ा हैगा states of matter इसदी definite shape and volume हुंदी है. Second, liquid दी डेफिनेट शेप नहीं हुंदी हैगी बट वॉल्यूम हुंदी है डेफिनेट. गैस दी ना तां डेफिनेट शेप हुंदी है और ना ही वॉल्यूम हुंदी है. ठीक है, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੋਂ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਂ ਗੈਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਂ ਗੈਸ 3 ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਗੈਸ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੇ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਸੋਲਿਡਸ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟਰਮ ਹੈ ਫਲੂਇਡ. A substance which flows when external force is applied on it. ठीक है, जेड़ा substance flow कर सकता है that is fluid. हुण तुसीं उपर एक टर्म देख रहे हो हाइड्रोस्टैटिक्स. जदों आपां state of matter liquid and gases दी flow करन दी गल कीती कि वो flow करदे आ. ठीक है, हुण जेड़े fluid फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, या एट रेस्ट हैं बट फ्लो कर सकते हैं बट एट रेस्ट हैं. ठीक है, उन्होंने बेस ते इस बेस ते आपां दो टर्म्स लईआं ने, एक हाइड्रोस्टैटिक्स ते एक हाइड्रोडायनेमिक्स. अज आपां हाइड्रोस्टैटिक्स लवांगे. ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब की हुंदा है एट रेस्ट. हाइड्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिहड़ी फ्लूइड्स की स्टडी करती है व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट. एंड हाइड्रोडायनेमिक्स जिहड़ी आपां नहीं पढ़नी हैगी +1 च, ओह फिजिक्स की वो ब्रांच है जिहड़ी फ्लूइड्स की स्टडी करती है जदों फ्लूइड्स मोशन च हुंदे आ, फ्लो कर रहे हुंदे आ. राइट, फ्लूइड्स बेटे आपां कंटेनर दे विच फ्लूइड शो करदे आ, कोई भी है ये फ्लूइड इस कंटेनर दी वैजल्स दे उत्तर प्रेशर पांदा है. ठीक है, सारी डायरेक्शंस दे विच. राइट, इस तरह मैं वैजल दे विच डायरेक्शन शो कीतियां कि ये वॉल्स ते कंटेनर दी वॉल्स ते प्रेशर पा रहे हैं. ठीक है, जदों मतलब आपां कंटेनर दे विच फ्लूइड नूं पावांगे, ठीक है, ਇਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੈਂਡਮ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਹੋਣਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੈਂਡਮ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਹੋਣਗੇ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਵਾਲਸ ਦੇ ਨਾਲ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. They transfer the change in momentum to the walls. So इसनों आपां कहने आ thrust. Thrust की definition तुसी की find out कर रहे हो? The normal change in momentum transferred to the walls per unit time by the molecules of fluid accounts for the normal force or thrust of fluid on wall of the container. जदों molecules collide करते हैं walls नाल तां change आंदी है in momentum. ठीक है, per unit time लेनी है ये change. ठीक है, molecule of fluid कर रहे हैं और इस normal change in momentum नूं ही आपां कहने आ thrust. Normal force, ठीक है, या thrust of fluid on the wall of the container. राइट, ये होगी थोड़ी thrust दी definition. Now the term is
pressure. What is pressure? This thrust, ठीक है, या normal force exerted by a liquid at rest per unit area of the surface in contact with it is called pressure. ठीक है, liquid thrust लगा रही है, liquid केड़ा है जेड़ा at rest है, ठीक है, वो thrust लगा रही है या normal force लगा रही है per unit area, ठीक है, जिस सरफेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, that will be called pressure. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਾਂਗੇ what is pressure. ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ P ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, P will be equal to force, ठीक है, this normal force by a liquid at rest पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया एरिया ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ A ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ F ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ A ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ F upon A. ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾਂ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, A ਲੈਸ ਹੋਏਗਾ, F ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ P ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ F ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਨਿਊਟਨ, A ਦਾ ਯੂਨਿਟ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, A अपॉन दे विच है इस करके आपां मीटर दे -2 ऊपर लगावांगे, ठीक है, या इसका यूनिट हुंदा है पास्कल, PASCAL दैट इज पास्कल। इसनूं आपां डिनोट करदे हां PA नाल। CGS यूनिट ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ SI यूनिट, CGS यूनिट होएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन का सीजीएस यूनिट डाइन है, मीटर का सेंटीमीटर है। डायमेंशनल फार्मूला यूनिट तो बाद आपां प्रैशर का डायमेंशनल फार्मूला देखांगे। तुसी डायमेंशनल फार्मूले कढने बड़ी चंगी तरह सीख चुके हो। प्रैशर का तुसी फर्स्ट यूनिट दे विच कढ के भी आए हो। इट विल बी M L -1 T -2, ठीक है। फोर्स का तुहानू पता है एरिया, फोर्स का याद है बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन M L T -2, दिस इज फोर्स अपॉन एरिया का L2। इसनू आपां L2 ऊपर जाके 1 -2 -1 हो जाएगा, बाकी ऐसा रहेगा, ठीक है। दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर बच्चों स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि जो आप प्रेशर जिहड़ा लिक्विड दे उत्ते प्रेशर पावांगे तां ओह सारी डायरेक्शन दे विच इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रेशर की कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं हुंदी, इस करके जिहड़ा प्रेशर है स्केलर क्वांटिटी है, राइट। एंड प्रेशर जिवें तुहानूं दस्सिआ कि F अपॉन A हुंदा रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स नॉर्मल टू एरिया, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द एरिया चूजन। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, ठीक है, अंडर ग्रेविटी। ये थोड़ा टॉपिक आ सकता है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद ग्रेविटी भी आ सकता है, डेप्थ भी आ सकता है, ठीक है। डायग्राम देख रहे हो तुसी, आह लिक्विड आपां लिया दे विच, इस लिक्विड की डेंसिटी सपोज कर लो रो, दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दिस इज रो।
ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਤੇ ਹੈ, ਐਟ ਰੈਸਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿਸ ਸਿਲੰਡਰ ਇਜ਼ ਇਮੇਜਿਨਰੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਸਟ ਇਮੇजिन ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਏ, C and D। this point is D, this point is C। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਏ, C and D। ਔਰ ਇਹ C ਤੇ D ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ H ਹਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ A। ਇਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ A। ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ C and D ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਫਲੈਟ ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਲਏ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਮਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਇਨਟੂ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ h ਤੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਈ ਹੈ, ρ। ਸੋ mass of the liquid inside cylinder will be AH ρ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ P1 ਹੈ ਐਂਡ D ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ P2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, here pressure P1, here pressure is P2। ਇਸ ਤੇ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਫੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, वर्टिकल फोर्सेस, डाउनवर्ड फोर्सेस, अपवर्ड फोर्सेस। ठीक है, इस ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਆਪਾਂ ਇਮੇजिन ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਫੋਰਸਿਸ ਹੋਏਗੀ that will be F1 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੋਏਗੀ। here ਇਸ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਇੱਕ F1 ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਐਂਡ ਉਹ F1 ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, will be equal to P1 into A। right, ਇਸ ਫੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ that will be F2 and this will be vertically upward। so second force होएगी F2, this will be equal to P2 into A, acting vertically upward, this were downward। third, weight of the liquid inside cylinder that will be equal to mg, and what is m? M is ah into rho into g, right। और ਇਹ ਜਿਹੜਾ weight है ਇਹ downward ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਦਿਸ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਇਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ, ਸੰਤੁਲਨ ਚ ਹੈ, ਐਟ ਰੈਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰੈਸਟ ਹੋਏਗਾ।
मतलब इस ते पूरे सिलेंडर ते जिहड़ी नैट फोर्स हुई है वो 0 होएगी क्योंकि एट रेस्ट है। ठीक है, नेट फोर्स ऑन इट मस्ट बी 0। आपां ये लिख लैने आ, नेट फोर्स ऑन सिलेंडर will be 0 because it is in state of rest, right? और जे ये स्टेट ऑफ रेस्ट च है then all the forces F1 प्लस mg, हुण आपां F1 ते mg प्लस क्यों किते हैं क्योंकि इन्हां दी डायरेक्शन सेम है, और F2 माइनस करांगे, राइट, दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ऑल द फोर्सेस F1 ते F2 दी आपां वैल्यू पुट करांगे, P1 A प्लस A H रो G माइनस P2 into A, this will be equal to 0। इस हुण A कैंसल हो जाएगा, all the A will be cancelled, यह आ जाएगा P2 माइनस P1 is equal to H रो G। ठीक है, हुण जे C ते D पॉइंट सेम लैवल ते लिक्विड दे, पहला तो आपां इन्हां विचकार हाइट H लई सी ना, हुण जे आपां कहने भी सेम लैवल ते आ, मतलब जे H 0 है, इफ H इज 0 देन इक्वेशन की बन जाएगी, दिस इक्वेशन H 0 है तो P1 P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, H 0 है तो P2 माइनस P1 भी 0 हो गया, मतलब P1 इज इक्वल टू P2, मतलब प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द लिक्विड लाइंग एट द सेम डेप्थ इन अ हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, हर एक पॉइंट ते जे सेम लैवल ते पॉइंट है, इत्थे है, इत्थे है, इत्थे है, इत्थे, इत्थे, मतलब इत्थे, 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 ये सारे पॉइंट्स ते, ठीक है, प्रेशर सेम होएगा। यही आपां मैथमेटिकली ड्राइव करके दिखाया हुण। सो दिस वाज द आर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। उस तो नेक्स्ट टर्म है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पैराडॉक्स, सॉरी हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। इसनू शो करन लई आपां 3 वेजल्स ले ले, ठीक है, A B एंड C। 3 वेजल्स दे डिफरेंट शेप है, तुसी देख रहे हो, ठीक है, जेड़े की ओपन है लोअर एंड तो, राइट, एंड दिस ओपनिंग दी एरिया जेड़ा हैगा तिन्ना दे विच सेम है। ठीक है, इन्हां दे आपां बॉटम जेड़ा हैगा ये ओपनिंग है क्लोज कर दांगे ते इत्थों आपां इस दी प्रेशर मेजर करांगे। इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंट शेप्स इन्हां दा प्रेशर जेड़ा हैगा आपां मेजर करांगे प्रेशर मीटर नाल। इत्थे आपां प्रेशर मीटर लगा दांगे, इस पॉइंट ते आपां देखांगे कि रीडिंग सेम आ रही है। जदों आपां इन्हां पॉइंट ते A B ते C दे वेजल्स दे एक पॉइंट ते इत्थे प्रेशर मीटर लगावांगे तां देखांगे कि तिन्ना दी जिहड़ी रीडिंग हैगी है सेम आ रही है। ठीक है, दिस इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। प्रेशर exerted by a liquid depends only on the height of liquid column and is independent of the shape of the containing vessel। मतलब आ जिहड़ी हाइट सीगी इस ते डिपेंड करदा है। ठीक है, हाइट सेम सीगी, प्रेशर दी रीडिंग इत्थे सेम आएगी, तीन जगह ते रीडिंग सेम आएगी क्योंकि हाइट सेम है। ठीक है, किस ते प्रेशर एक्सर्टेड डिपेंड करता है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, और इंडिपेंडेंट है शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। ठीक है,
शेप किहे जी है उस ते बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हुंदा हैगा प्रेशर। सो दिस इज हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। नेक्स्ट इज पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਈਏ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ, then pressure at every point of liquid in equilibrium of rest is the same। liquid ਦਾ ਜੇ equilibrium ਚ ਹੈ, at rest ਹੈ, then ਜਿਸ ਵੀ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ liquid ਹੈ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। Increase in pressure at one point of the enclosed liquid in equilibrium of rest is transmitted equally to all other points of the liquid and also to the walls of the container provided the effect of gravity is neglected। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹ increase in pressure at one point of the enclosed liquid। enclosed liquid है, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਇਕੁਅਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। increase in pressure at one point of the enclosed liquid, ਆਪਣੇ ਕੋਲ enclosed liquid ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਕੁਅਲੀ ਟੂ ਆਲ ਅਦਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਇਕੁਅਲੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाने हैं। अपने को स्फेरिकल वेसल है, देख रहे हो तुसी डायग्राम च, 4 सिलेंडर्स हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, A, this is D, this is C and this is B। A B C D ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਿਲੰਡਰਸ हैं। ਫਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਿਸਟਨ ਫਿਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। these are pistons, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ A B C D ਪਿਸਟਨਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੈਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਵੈਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੰਪਰੈਸਿਬਲ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕੰਪਰੈਸਿਬਲ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ 에ਅਰ ਗੈਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ A B C D ਪਿਸਟਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ A ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। A ਪਿਸਟਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ A, B ਪਿਸਟਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ A/2 ਐਂਡ C ਪਿਸਟਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ 2A, D ਪਿਸਟਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ 3A, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ A ਪਿਸਟਨ ਤੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਰਸ F ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ that will be equal to F/A। this will be pressure on this incompressible liquid where there is no air gap। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ A ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ,
ਇਹ ਪਿਸਟਨਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਫਿਕਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, B ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਕਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ F/2 ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। C ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਕਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2F ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਐਂਡ D ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ 3F ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋਲਡ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ? B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ F/2 ਅਪਨ A/2। ਆਪਾਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ F/2 ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜਾ ਰਵੇ। ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਫੋਰਸ ਅਪਨ ਏਰੀਆ। ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ F/2 ਔਰ ਏਰੀਆ ਇਹਦਾ ਹੈ A/2। C ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੋਰਸ 2F ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ 2A। D ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 3F ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ 3A। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੁਅਲ ਕਿਹਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? F/A। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੇ F/A ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਕੁਅਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਏ ਸੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ F/A ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪਾਸਕਲਸ ਲਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, नेक्स्ट अपने सिलेबस है पास्कल्स लॉ दी दो एप्लीकेशंस हैं। वन इज हाइड्रोलिक लिफ्ट, अनदर इज हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हुण लिफ्ट वर्ड तो तुसीं समझदे हो कि हैवी लोड्स नूं चुक्कण दे काम आंदी है। ठीक है, जिहड़ी हाइड्रोलिक लिफ्ट हुंदी है यह पास्कल लॉ ते वर्क करदी है। एक सिंपल मैं तुहानूं हाइड्रोलिक लिफ्ट इस दे विच दिखा रही हां। ठीक है, इस विच मैं तुहानूं नाल-नाल डायग्राम समझा रही हां। सी ते डी अपने कोले दो सिलेंडर्स हैं, यह सी है यह डी है। ठीक है, इन्हां दा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन डिफरेंट है। सपोज कर लो इहदा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ए है और इहदा कैपिटल ए है और इस सिलेंडर्स नूं आपां एक ई पाइप दे नाल कनैक्ट किया होया। दिस इज पाइप ई। ठीक है, यह सिलेंडर्स आपां एयर टाइट फ्रिक्शनलैस पिस्टन दे नाल प्रोवाइड किए हुए हैं। दिस इज पिस्टन एंड दिस इज एयर टाइट एंड फ्रिक्शनलैस। ठीक है, दीज आर टू pistons. Now the cylinders are filled with incompressible liquid. ठीक है, इन्हां दे विच आपां incompressible liquid पाया होया है। हुण आपां सपोज करना है कि इस पॉइंट ते डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, दैट इज F। ठीक है, सी पिस्टन ते आपां डाउनवर्ड फोर्स लगाई, दैट इज F। देन इस पॉइंट दे उत्ते, इस सिलेंडर दे उत्ते, सी सिलेंडर ते कितना प्रेशर लगेगा? दैट प्रेशर विल बी इक्वल टू स्मॉल f अपॉन a, क्योंकि F फोर्स लगाई है, A इहदा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन है। ठीक है, हुण पास्कल लॉ दे अकॉर्डिंग यह प्रेशर लग्या होया इक्वली ट्रांसमिटेड होना चाहिए। ठीक है,
ਇਕੁਅਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ मतलब डी पॉइंट ਤੇ डी ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਕੁਅਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਡਾਊਨਵਰਡ ਫੋਰਸ ਲਗਾਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਫੋਰਸ ਲਗਾਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਪਵਰਡ ਫੋਰਸ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਪਵਰਡ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, upward force on cylinder D that will be equal to F P into A. Now what is P? This is F upon A and A area is the area of cross section है। ठीक है, ये अपने को आ गया एफ ए अपॉन ए, बट आप क्या कि ए जड़ा हैगा फार ग्रेटर देन है स्मॉल ए, मतलब आ वाला जड़ा एरिया है, ठीक है, इस तो बहुत ज्यादा वड्डा है। जे ए इस तो कैपिटल ए स्मॉल ए तो बहुत ज्यादा वड्डा है, देन जेड़ा ए एफ है इस तो स्मॉल एफ तो बहुत वड्डा होएगा मैथमेटिकली। ठीक है, इस तो अपन की पता लगता है कि स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन विल बी अपीयरिंग एट अ वेरी लार्ज फोर्स ऑन द लार्जर पिस्टन। मतलब जे आप इत्थे स्मॉल एफ जिहड़ी फोर्स लगाई, यही फोर्स की इफेक्ट करेगी लार्जर पिस्टन ते, इक्वली ट्रांसमिट होएगी और ज्यादा फोर्स लगाएगी। ये स्मॉल फोर्स नाल आपां ज्यादा फोर्स दा बेनीफिट लै सकते हैं। ठीक है, इसे करके जिहड़ी हैगी हाइड्रोलिक लिफ्ट हैगी ये हैवी लोड चक्कन दे काम आंदी है। हैवी लोड चकदे आपां स्मॉल फोर्स अप्लाई करके। ठीक है, इत्थे स्मॉल फोर्स अप्लाई करदे हां ते इत्थे लार्ज फोर्स हुंदा है, और ये लार्ज फोर्स आपां हैवी लोड अपवर्ड चक्कन दे लई, उपर चक्कन दे लई यूज करदे हां। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ हाइड्रोलिक लिफ्ट। नेक्स्ट एप्लीकेशन है अपने कोल हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स। दिस इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। मैं इसनूं तुहानूं हुण एक्सप्लेन करदी हां। ये भी पास्कल लॉ ते वर्क करदी है हाइड्रोलिक ब्रेक। इस च हुंदा की है, अपने कोल एक एम मास्टर सिलेंडर हुंदा है। ठीक है, इस दे विच ब्रेक ऑयल भरिया हुंदा है। ठीक है, ब्रेक तो तुसी समझ ही रहे हो, मैं तुहानूं की दसना चाहनी हां कि ब्रेक्स किवें काम करदियां ने। तुहाडे व्हीकल च जो भी तुसी चलाने हो उस दे विच ब्रेक्स दा की वर्किंग हुंदी है, एंड दैट इज आल्सो इक्वल अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। और यह जिहड़ा हैगा मास्टर सिलेंडर एम है, इसनूं आपां पी पिस्टन प्रोवाइड किया हुंदा है। दिस इज पी पिस्टन, राइट। और यह पी पिस्टन अगे पैडल दे नाल कनैक्ट किया हुंदा है। जिथे आपां गड्डी च बैठदे हो तुसी, तुहाडे पैर ब्रेक ते हुंदे आ। ठीक है, इस पैडल दे नाल मतलब इत्थे फुट शो किया होया है, इत्थे कनैक्ट किया हुंदा है, और कनैक्ट किया हुंदा है एक लीवर दे थ्रू। ठीक है, और यह मास्टर सिलेंडर जिहड़ा हैगा यही आपां कनैक्ट करना हुंदा अगे। दिस मास्टर सिलेंडर इज कनैक्टेड टू सिलेंडर सी, और यह सिलेंडर सी जिहड़ा हैगा व्हील दा, पहिए दा, तुहाडी व्हीकल दे व्हील दा सिलेंडर है ये। ठीक है, एक व्हील दे नाल जिहड़ा सिलेंडर लग्या हुंदा है, ओह सिलेंडर मास्टर सिलेंडर नाल कनैक्ट किया हुंदा है, और कनैक्ट किया हुंदा है थ्रू दिस ट्यूब टी। ये जिहड़ी तुसीं ट्यूब देख रहे हो, दिस इज ट्यूब टी। और इस मास्टर सिलेंडर च दो पिस्टन हुंदे हैं, वन इज दिस P1 एंड अदर इज दिस P2। और
ਔਰ ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵੀਲ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ S1 ਐਂਡ S2। ਔਰ ਇਹ ਸਪਰਿੰਗ S ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ S ਸਪਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਵੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਲੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ P ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਸਟਨ ਇਨਵਰਡ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਵਰਡ ਦਿਸ डायरेक्शन इनवर्ड पुश हो गया। देन इस पॉइंट ते जिहड़ा हैगा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और यह प्रेशर इंक्रीज होया हुआ P1 ते P2 वाल इक्वली ट्रांसमिट होएगा अकॉर्डिंग टू पास्कल ला। इस करके ये P1 ते P2 हैगे आ जिहड़े ये आउटवर्ड मूव करनगे, राइट। P1 ਤੇ P2 आउटवर्ड मूव करनगे ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆउटवर्ड मूविंग ਜਿਹੜੀ मूवमेंट हैगी है ਉਹ फोर्स लगाएगी ब्रेक शूज ਤੇ, ठीक है। ਇਹ ब्रेक शूज ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ दूर होणगे, ठीक है। ब्रेक शूज टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर और इन टर्न ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ दूर हो गए ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਰਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀਲ ਦਾ ਇਨਰ ਰਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है, उस ते प्रेशर लगाएंगे। इनर रिम ते प्रेशर लगेगा एंड यह इनर रिम ते जो प्रेशर लगेगा तो रिटार्डेशन होएगी, ठीक है। और यह रिटार्डेशन जिहड़ी हैगी है व्हील दे मोशन दे डिक्रीज करेगी, मोशन ऑफ व्हील। एंड इसनूं आपां कहने आ कि ब्रेक ऑपरेटिव हो गई। उस तो बाद जदों इस ब्रेक ते आपां प्रेशर रिलीज किया, ठीक है, हुण आपां रिलीज करता, ब्रेक शूज अपनी फिर पोजीशन उसे वापस आ जाएंगे नॉर्मल पोजीशन च, क्योंकि आपां स्प्रिंग लगाया होया, ठीक है। और इन टर्न की होएगा ब्रेक ऑयल नूं यह फोर्स लगाएंगे ताकि व्हील सिलेंडर जिहड़ा हैगा मास्टर सिलेंडर ते फोर्स लगा सके, ठीक है। सो दिस इज दी वर्किंग ऑफ एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स। इसनूं दोबारा सुन लियो बच्चे जे ना समझ आया होया तुहानूं, बट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है एटमोस्फीरिक प्रेशर। जनरल लैंग्वेज आपां गल करते आ रहे हैं कि अर्थ दे अराउंड एक गैशियस इनवैल्प बनिया हुंदा है एंड इसनूं आपां अर्थ एटमोसफीयर कह दिंदे आ, गैसां दा गिलाफ, है ना। बट इन फिजिक्स दे आपां विच पर्टिकुलर एक डेफिनेशन लेके आए हैं, ठीक है। इस तो पहला अर्थ दा एटमोसफीयर जिन्ना कि तुहानूं पता है तो अर्थ दी किलोमीटर बहुत कुछ किलोमीटर्स तक जिहड़ा हैगा एटमोसफीयर फैलिया होया है। एंड इस एटमोसफीयर च मेनली की है 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड इस दे नाल ही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, आर्गन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सल्फर वर्गे कंपाउंड्स भी हैं। ये तुसी छोटी क्लासां च पढ़ते आ रहे हो। और इस एटमोसफीयर दी एयर दी डेंसिटी जिउं जिउं आपां अर्थ दे सरफेस दे उपर वल नूं जांदे आ तां ही घटदी जांदी है, राइट। हुण एटमोस्फेरिक प्रेशर दी जिहड़ी डेफिनेशन है, द एटमोस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ अ वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम दैट पॉइंट टू द टॉप ऑफ द अर्थ's एटमोसफीयर, ठीक है। आपां एक पॉइंट लेना हुंदा है
उस पॉइंट ते वर्टिकल कॉलम दे विच एयर दा वेट, ठीक है, उस वर्टिकल कॉलम दा क्रॉस सैक्शनल एरिया भी यूनिट लैके, ठीक है, इस तरह करके आपां एटमोसफीरिक प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। सो एट सी atmospheric pressure is 76 centimeter of mercury या 1.013 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एटमोसफेरिक प्रेशर मैं तुहानूं दस्सिया कि डिक्रीज करता रहता है हाइट दे नाल, जिवें जिवें चली जाने आ, पर एक सर्टन हाइट ते आके ये 0 हो जाता है। जे आपां इहदी ग्राफिकली रिप्रजेंटेशन देखनी होवे दैन इधर आप हाइट ले लो, इस साइड आप प्रेशर ले लिया, ठीक है, कुछ इस टाइप का थोड़ा ग्राफ बनेगा, राइट। और यह जेड़ा मैं थोनू प्रेशर लिखिया है, यह प्रेशर फाइंड आउट किया सीगा फर्स्ट टॉर्सली ने, ठीक है, टॉर्सली वाज द फर्स्ट टू फाइंड द एटमोसफेरिक प्रेशर। किस तरह किया सी उन्हें, एक ग्लास ट्यूब ले ली सी, ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब, ठीक है, 1 मीटर लेंथ सी इस ग्लास ट्यूब दी, राइट, इस ग्लास ट्यूब दी 1 मीटर लेंथ है एंड यूनीफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन है दा, पूरी हरेक पॉइंट ते दा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन यूनीफॉर्म है, एक एंड तो क्लोज है, ठीक है, और इस आपां ट्यूब नू मरकरी नाल फिल कर लेना है, पूरा मरकरी नाल फिल करके, ठीक है, उस तो बाद इस दे लोअर एंड ते आपां थंब रख के इस ट्यूब नू आपां एक मरकरी दे फिल किते हुए ट्रफ दे विच उल्टा करके रखना है, राइट, ये तुहानूं उल्टा करके रख के दिखाया होया है। दैन की फाइंड आउट किया सीगा टॉर्सली ने, इस ट्यूब नूं आपां वर्टिकली होल्ड करना एक बारी पहला, फिर थोड़ा टिल्ट करके देखना, पहला वर्टिकली। इस फाइंड आउट किया सी कि मरकरी इन द ट्यूब विल फॉल डाउन एट फर्स्ट, पहला फॉल डाउन होएगी एंड देन विल बी स्टॉप्ड एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, इस पोजीशन पर्टिकुलर पोजीशन ते आके ही स्टॉप हो जाएगा जिहड़ा मरकरी दा फॉल डाउन हो रहा सीगा, ठीक है, एंड द हाइट ऑफ लेवल ऑफ मरकरी इन द ट्यूब इज 76 सेंटीमीटर, ठीक है, आ जिहड़ी हाइट है हमेशा हर बार जिन्नी बार भी आपां करके देखिया 76 सेंटीमीटर ते ही होल्ड डाउन होगी मरकरी, उस तो बाद होर फॉल डाउन नहीं हुई हैगी, ठीक है। जदों आपां इहनूं टिल्ट किया, इनकलाइंड किया थोड़ा जा, ठीक है, दैन फिर मरकरी दा लैवल डाउन होया, बट वो मरकरी दा लैवल फिर 76 सेंटीमीटर तक ही डाउन होया, ठीक है, मतलब वर्टिकल लैवल जिहड़ा हैगा हर बार जिन्नी बार भी आपां देखिया, टिल्ट करके देखिया, इनकलाइन करके देखिया, कॉन्स्टेंट ही आया 76 सेंटीमीटर। तां टॉर्सली ने एक्सप्लेन किया सीगा कि मरकरी कॉलम इज सपोर्टेड बाय द एटमोसफेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द फ्री सरफेस ऑफ मरकरी इन द ट्रफ। सो ये भी एक हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स जिहड़ा पढ़ के आए हैं, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है इस वर्टिकल जिहड़ी कॉलम है अपने कोल मरकरी दा वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, आ देखो ये भी फ्री सरफेस है मरकरी दी, उस तो उपर जिहड़ा वर्टिकल कॉलम है मरकरी दा, ठीक है, फ्री सरफेस दे उत्ते वर्टिकल कॉलम दे नाल आपां एटमोसफेरिक जिहड़ा हैगा प्रेशर फाइंड आउट किया, ठीक है, और जिहड़ा ये खाली थां बन जाती है, इस थोड़े जे मरकरी दे वेपर्स हुंदे आ बट आलमोस्ट खाली हुंदा है, ठीक है, इस करके इसनूं कह दिंदे आ टॉर्सलियन वैक्यूम, राइट। हुण बेटा एट सी लैवल तुहानूं दस्सिया कि एच है 0.76 मीटर, हुण आपां मीटर दे विच ले लिया है, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी हुंदी है,
रो इज इक्वल टू 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू तुहानू पता ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एटमोसफीरिक प्रैशर, हुण आपां इत्थों एटमोसफीरिक प्रैशर कड्डांगे, उसका फार्मूला है एच रो इंटू जी, राइट। वैल्यूज पुट करो, एच है 0.76 इंटू रो की वैल्यू है 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू है 9.8। इसनों आपां कैलकुलेट करांगे तो अपने कोल आ जाएगा 1.013 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, राइट। ये जिहड़ा मैं तुहानू पहलां दस के आई हाँ एटमोसफीरिक प्रैशर की वैल्यू, दिस वैल्यू आपां फाइंड आउट की है, ठीक है। उस तो बाद आ जाओ हाइट ऑफ एटमोसफीयर। आपां नू पता है कि अर्थ दिस मच वैल्यू प्रैशर एग्जर्ट कर रही है, ठीक है। जे आप एटमोसफीरिक एयर हैगी है उसनू यूनीफॉर्म डेंसिटी दी मान लैंदे आ, और वो डेंसिटी है 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। आपां ही एटमोसफीरिक एयर दी डेंसिटी लई है। then height of the atmosphere कितनी होएगी, pressure of atmosphere upon rho into g, this will be equal to, values put कर दो, right, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7951 मीटर, that is approximately equal to 8 किलोमीटर। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਹੈ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹ ਟਰੂ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਈਟ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਹਾਈਟ ਆਫ ਅਰਥਸ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ 에ਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਹਾਈਟ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ 1/4 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ 에ਅਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 1/20 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕੱਢਣੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹਾਈਟ ਕੱਢਣੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰਫ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਲਈ ਹੈ 1.3, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਇਹ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।